بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام چینل کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک خواجہ سرا کی ہے جو میرے گھر اکثر آتے رہتے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ اپنے علاقے کے گرو ہیں اور 60 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے تو لیجیے پڑھیے ان کی آپ بیتی انہی کی زبانی۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ جب پیدا ہوا تو والدین بہت خوش ہوئے۔ جمشید نام رکھا۔ میں گورا چٹا ایک خوبصورت لڑکا تھا جسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کے خواجہ سرا میری پیدائش کے 1 ہفتے کے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ اور 50 روپے دیے۔ اس وقت 50 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے باپ سے پہلے والی پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، البتہ ماں کے پیار کی وہی پہلے والی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا تھا۔ 5ویں کلاس تک تو جیسے تیسے کر کے میں نے پاس کر ہی لی، لیکن جب 6ٹھی میں پہنچا تو بچے مجھے خسرا کہہ کر چھیڑنے لگے تھے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی بار جب اماں سے یہ پوچھنے لگا کہ اماں یہ خسرا کیا ہوتا ہے تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ خسرا اچھا لفظ نہیں ہے۔ ابا مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں پیار کرتے ہیں لیکن آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹوں کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ خسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سب سے پیار کرتا دیکھتا تو بڑا دکھی ہو جاتا۔ میں 7ویں کلاس میں گیا تو اسکول کے بچوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخر کار اماں نے مجبور ہو کر مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کھینچے رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا تو خواجہ سرا رستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا۔ اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی تھی، اپنا سا لگنے لگا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھر آ گیا اور اماں کو بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی اور مجھے اس وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر گئیں۔ اسے خوب سنائی، جب تک میں زندہ ہوں اسے مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار جو آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ وہ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کی باتیں سنتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد جب اماں تھک گئی اور رونے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد وہ خواجہ سرا کہنے لگا، بہن مجھے معلوم ہے آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میں ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں اسے ہمارے علاوہ اور کوئی نہ محبت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جگہ۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتی تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم از کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اسے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئیں۔ 6 ماہ کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جب اماں بھی مجبور ہو گئیں۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا عقیقہ تھا۔ پورے خاندان والے اور ابا کے آفس کے دوست موجود تھے۔ گھر کے سامنے شامیانے لگائے گئے تھے۔ اس وقت ٹیبل کرسیاں نہیں رکھی جاتی تھی، نیچے ہی دریاں بچھائی جاتی اور کھانا دری پر بیٹھ کر ہی کھایا جاتا تھا۔ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا۔ کھانے میں کچھ دیر تھی، میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا کہ خاندان میں سے کزن مجھے خسرا خسرا کہہ کر پکار رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں آنسو دل میں دبائے خاموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا۔ ابا کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور وہ میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا یوں ہاتھ پھیرنا مجھے ناگوار گزرا۔ ابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں ابا
कहते हुए उनकी तरफ भागता हुआ गया। मेरे मुंह से अब्बा सुनकर वो लोग जीप से गए और अब्बा से कहने लगे, यार फरीद, हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेटा है। हम तो उसे खुशा समझकर उससे तफरीह कर रहे थे। अब्बा उसकी ये बात सुनकर शर्मिंदा से हो गए और मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाकर स्टोर में बंद कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद मुझे अब्बा ने स्टोर से निकाला और सबके सामने मारना शुरू कर दिया। अम्मा मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया। खबरदार, अब बहुत हो गया है, बस ये खुसरा अब यहाँ नहीं रहेगा और अगर अब तुमने इसकी हिमायत की तो मैं घर छोड़ कर निकल जाऊँगा। मैं उसकी वजह से बहुत ज़लील हो चुका हूँ, अब मज़ीद ज़लील होने की हिम्मत नहीं है। इसे आज ही इसकी असल जगह छोड़ कर आओ। 15 मिनट तक अब्बा मुझे मारते रहे और अम्मा को सुनाते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए थे। मैं इस वक्त एकदम से बड़ा हो गया था। अपनी हैसियत, अपनी औकात मुझे आज से ही मैनों में मालूम हो गई थी। मेरा दिल शिद्दत गम से फटता जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त ज़मीन में दफन हो जाऊं। जब अब्बा मारते मारते थक गए तो ये कहते हुए बाहर चले गए कि मैं 1 घंटे के बाद घर आऊँगा। इस मनहूस की शक्ल मुझे दोबारा दिखी तो फिर मेरा मुंह तुम कभी नहीं देखोगी। अब्बा के जाने के बाद मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर टेची खेस में रखने लगा और अम्मा के पास आ गया। अम्मा, मुझे मेरी असल जगह छोड़ कर आ जाओ। अम्मा जो रो रही थी, चीख मार कर मुझसे लिपट गई थी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन मैं अब नहीं रो रहा था, बस अम्मा के आंसू ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अम्मा के आंसू ख़त्म हुए तो मैं अम्मा के कमरे में गया और अम्मा का बुर्का लाकर अम्मा को थमाया। अम्मा ने मुझे देखा और खामोशी से बुर्का पहनना शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद अम्मा ख्वाजा सरा के घर मौजूद थी। अम्मा का चेहरा देख कर वो सब समझ गया था और बड़ी इज्जत से अम्मा को बिठाया और चाय बनाकर अम्मा के सामने रखी। अम्मा की आंखों से दोबारा आंसू निकलना शुरू हो गए थे। ख्वाजा सरा के कहने पर, बहन जी, इस दुनिया में सिर्फ एक वाहिद माँ ही की हस्ती है जो हम ख्वाजा सराओं को बर्दाश्त कर सकती है और कोई नहीं, लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद मजबूर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसे हमारे पास छोड़ जाओ। हम आप लोगों की खुशी के मौका पर नाच गाकर पेट पालते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। ये हमारे पास महफूज रहेगा। इसे यहाँ मोहब्बत, अपनायत मिलेगी, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका जब दिल करे इससे मिल सकती हैं या इसे अपने घर बुला सकती हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका शौहर कभी इसे घर बुलाना पसंद नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे अपने से लिपटा लिया था। मेरे चेहरे पर बोसों की बारिश शुरू कर दी थी। रोती जा रही थी और मेरा चेहरा चूमती जा रही थी। मेरे अंदर आंसुओं का सैलाब जारी था, लेकिन आंखें खुश्क थीं। कुछ देर के बाद अम्मा अपने घर चली गई। वहाँ 6 ख्वाजा सरा रहते थे और मैं 7वां था। उस ख्वाजा सरा ने मेरा बिस्तर अपने साथ लगाया और सारे ख्वाजा सरा मुझसे बड़ी मोहब्बत से बातें करने लगे। वो अपने बारे में बताने लगे और मुझसे मेरी पसंद का खाना पूछकर 2 ख्वाजा सरा खाना बनाने लगे थे। आलू गोश्त खाकर यूं ही बातें करते करते मैं सो गया था। सिर्फ 3 दिन में मेरा दिल वहाँ लग गया। मैं हंसने बोलने लगा था। मेरे लिए लड़कियों वाले 4 जोड़े बनवाए गए और 1 हफ्ते के बाद मुझे 2 ख्वाजा सरा अपने साथ एक घर ले गए जहाँ बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी। वहाँ एक ने ढोल बजाते हुए गाना और दूसरे ने नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद 200 और 150 रुपये उन लोगों से जमा होकर के हम घर आ गए। अब इसी तरह वो मुझे साथ ले जाते। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा था। 2 माह बाद मेरे कहने पर उन्होंने मुझे भी नाचना गाना सिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते। मेरी पसंद के खाने बनाए जाते। मेरे लिए हर दूसरे रोज़ मिठाई लाई जाती। अम्मा शुरू में तो हर दूसरे दिन आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वफ़ा लंबा होने लगा। 4 माह के बाद अम्मा आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, बेटा, हम कल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तेरे अब्बा ने मकान बेचकर दूसरे इलाके में मकान ले लिया है। अब मैं तुझसे मिलने 2-3 माह बाद ही आ सकती हूँ। ये कहकर अम्मा चली गई। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब मेरे अपने मेरे साथ थे। चंद दिन में सब भूल कर दोबारा अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। 2 साल इसी तरह गुजर गए। अब मैं इनसे भी अच्छा नाचने लगा था। गुरुजी मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैं नाचता और गुरुजी गाते। लोगों को मेरा नाच पसंद आने लगा था और ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए थे। अब लोग मुझे ख़ुसूसी तौर पर तकरीब के मौका पर बुलाने लगे। मैं सारे ख्वाजा सराओं का लाडला बन चुका था। मेरा नाम रानी, जो कि इस दौर की मशहूर अदाकारा थी, रखा जा चुका था। अब मैं 20 साल का खूबसूरत ख्वाजा सरा था, जिसकी धूम आसपास के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन
दो आदमी हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी से अपने बच्चे के टीके में मुझे लाने का कहा और 200 रुपये गुरुजी के हाथ में रख दिए और ये कहते हुए चले गए कि मैं 2 दिन बाद गाड़ी भेज दूँगा। 2 दिन के बाद ठीक वक्त पर गाड़ी आ गई और गुरुजी मुझे और 2 ख्वाजा सरा को साथ लेकर गाड़ी में बैठ गए। आधे घंटे के बाद गाड़ी एक बड़े शामियाने के पास रुक गई। घर शामियाने के बाद था। हम गाड़ी से उतरे। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए एक आदमी और औरत को देखकर चौंक पड़ा था। वो आदमी मेरा बाप था जो बैसाखी पकड़े अम्मा के साथ घर से निकल रहा था। अम्मा मुझे देखते ही खिल उठी थी और हाल अहवाल पूछने के बाद दोनों बहनों की शादी का जिक्र छेड़ दिया। अब्बा नज़रें नीचे किए हुए थे। इत्तेफाक से सारे बहन भाई भी मौजूद थे। मैंने 50,000 रुपये निकाले और अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा आप सब मुझे सिर्फ ये बताओ कि खुसरा मैं खुद बना था या मुझे अल्लाह ने बनाया जो मुझे पैदा होते ही सज़ा दी जा रही थी। आपकी मोहब्बत का एक सहारा बचा था। कल आपकी अब्बा से बातें सुनकर वो भी ख़त्म हो गया और अब मेरा बाप और माँ सब कुछ मेरे गुरुजी और ख्वाजा सरा है। ये पैसे उन्होंने ही मुझे आपको देने भेजा है, वरना मैं यहाँ कदम रखना भी नहीं चाह रहा था। अब मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। अम्मा नज़रें झुकाए शर्मिंदा सी बैठी रही, कुछ नहीं बोली। मैं वापस अपने घर आ गया और अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। अब मेरा सब कुछ मेरे अपने थे, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था। गुरुजी से बात करके प्रोग्राम के मामलात अपने ज़िम्मे ले लिए और रेट बढ़ा दिए। अब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। गुरुजी का संदूक पैसों से भरने लगा था। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी मांग कम होने लगी थी, जिसका मुझे पहले से अंदाज़ा था। और नए शामिल होने वाले 3 नौजवान ख्वाजा सराओं को मैं तरबियत देकर तैयार कर चुका था। गुरुजी अब सारे मामलात मेरे हाथ में लेकर आराम कर रहे थे। मैंने सबको एतमाद में लेकर जमा किए 7 लाख रुपयों से मोहल्ले में दुकान खरीद ली। इस वक्त 120 गज़ का आम मकान मिल जाता था, उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। 2 मकान खरीद लिए। फिर एक दिन मेरा बचपन मेरे सामने खड़ा हो गया। एक औरत एक 8 साला बच्चे को लिए घर में खड़ी रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठाया और चटाचट प्यार करने लगा था और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। औरत के जाने के बाद मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा हमारी तरह नाचने गाने वाला नहीं बने। मैं इसे पढ़ा लिखा कर इस ज़ालिम माशरे को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम भी उनकी तरह माशरे का मुफीद हिस्सा बन सकते हैं। गुरुजी और सारे ख्वाजा सरा बहुत खुश हुए। बच्चे का नाम तैयब था, लेकिन मैंने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। बड़ी मुश्किल से एक टीचर को भारी फीस के एवज़ ट्यूशन पढ़ाने पर राज़ी किया और एक ख्वाजा सरा जो कुरान पढ़ा हुआ था उसने अब्दुल्ला को कुरान पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब्दुल्ला अब हम सब की आंखों का तारा बन चुका था। उसकी माँ 2 बार आई, लेकिन फिर वो भी अपनी तीसरी औलाद में मस्त हो गई। 4 साल के बाद एक अब्दुल्ला जब छठी क्लास में था ट्यूशन पढ़ने गया, लेकिन शाम 6 बजे तक घर नहीं आया। हम सब परेशान थे। टीचर से मालूम किया तो कहने लगी कि वो आधे घंटे पहले ही निकल चुका है। अब हम सब मज़ीद परेशान हो गए थे। उसके घर देखा, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन अब्दुल्ला का कोई अता पता न चल सका। मजबूरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। SHO अच्छा इंसान था, उसने उसी वक्त पुलिस की गाड़ी अब्दुल्ला की तलाश में भेज दी। हम रात 10 बजे थक हार कर घर चले गए। अगला दिन हमारे लिए क़यामत बनकर सामने आया था जब अब्दुल्ला की लाश हमारे घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करके उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और मुजरिम भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अब्दुल्ला जो कि मेरा सब कुछ बन चुका था, उसे इस हालत में देखकर मैं ज़मीन पर गिर गया था और बेहोश हो गया। होश आने के बाद अब्दुल्ला के घर वालों को खबर दी, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया। अब्दुल्ला को दफनाने के बाद मुझे मुजरिमों का ख्याल आया था। उसी वक्त गुस्से से खोलता हुआ 2 ख्वाजा सराओं के साथ थाने पहुंचा। SHO ने पुलिस को मुजरिमों को लाने को कहा। 5 मिनट के बाद 3 मुजरिम मेरे सामने खड़े थे, जिनमें से एक को देखकर मेरे दिल में ज़ोरदार सी ठेस उठी और गिर गया। वो मेरा छोटा भाई था। SHO फ़ौरन मुझे जना अस्पताल दिल के वार्ड में ले गया। मुझे दिल का खतरनाक अटैक हुआ था। 2 दिन के बाद घर आया तो सीधा SHO के पास गया। उससे दरख्वास्त की कि मुजरिमों को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। SHO ने मुझे मुतमईन करके घर भेज दिया। अगले दिन घर पर माँ झोली फैलाए मेरे सामने खड़ी अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन पहली बार मुझे माँ पर ज़रा भी रहम नहीं आया और माँ मुझे कोसने देती अपने घर चली गई। अब्दुल्ला की मौत के बाद
मेरा दिल उस इलाके से उचाट हो चुका था। तीनों घर फरोख्त करके वो इलाका छोड़कर इस इलाके में आ गया और एक चेले को अपना जानशीन बनाकर आराम करने लगा था। मैंने पैसा पानी की तरह बहाकर अपने छोटे भाई को फांसी दिलवाकर अब्दुल्ला का इंतकाम ले लिया। अब मैं हूँ और मेरे अब्दुल्ला की यादें हैं। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम भी आप लोगों की तरह अल्लाह ताला की तख्लीक हैं, तो आप हमें हकीर समझते हुए हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? दरअसल वो हमारा नहीं बल्कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह खालिक का मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला को माशरे का मुफीद हिस्सा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ तो हम ख्वाजा सराओं के वालिदैन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें अपनों के होते हुए अपनों की मोहब्बत से महरूम होना पड़ता है? क्या हमारा इस मोहब्बत पर कोई हक नहीं है? और हमें इस माशरे में हकीर बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार बदकिस्मती से दुनिया के सबसे मुक़द्दस रिश्ते माँ और बाप का नहीं? सोचिए, ज़रूर सोचिए और खुदारा ख्वाजा सराओं को माशरे का मुफीद हिस्सा बनने में अपना अपना किरदार अदा करें। उम्मीद है आप दोस्तों को ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।